Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics Tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So today's first question is, which state has introduced program to transform foundational learning with World Bank aid? किस स्टेट ने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जो कि वर्ल्ड बैंक एड के साथ फाउंडेशनल लर्निंग को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा? So here are the options: Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka. So here the correct answer is option B, Andhra Pradesh. Andhra Pradesh has started a program to transform foundational learning in government schools, for which the World Bank has approved a loan of $250 million. आंध्र प्रदेश ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो कि फाउंडेशनल लर्निंग को ट्रांसफॉर्म करेगा गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से उसे लोन मिला है $250 million का. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एडिशनल अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड बाय गवर्नमेंट फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन विलेजेस अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट? कितने एडिशनल अमाउंट एलोकेट किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को में सारे विलेजेस में भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत? सो हेयर आर द ऑप्शंस: रुपीज़ 18,041 करोड़, रुपीज़ 19,041 करोड़, रुपीज़ 19,141 करोड़, रुपीज़ 18,141 करोड़. So here the correct answer is option B, rupees 19,041 crore. The government allocated an additional rupees 19,041 crore to provide broadband connectivity in all villages under the BharatNet project. गवर्नमेंट ने क्या एलोकेट किया? 19,041 करोड़ एलोकेट किया है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सारे विलेजेस में आने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत. So now next question, which nation has recently announced $41 million additional COVID-19 assistance to India? किस देश ने हाल ही में अनाउंस किया है $41 million COVID-19 असिस्टेंस इंडिया के लिए? So here are the options: Japan, Russia, France, USA. So here the correct answer is option D. The US has announced an additional $41 million assistance to help India respond to the COVID-19 pandemic and strengthen the country's preparedness for the future health emergencies, taking the total aid to more than $200 million. US ने अनाउंस किया है कि US $41 million देगा इंडिया को कोविड-19 पैंडमिक से लड़ने के लिए, उसके हेल्प करने के लिए और कंट्री को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे हेल्थ इमरजेंसी से कंट्री अच्छी तरह से लड़ पाए. तो टोटल एड कितना हो गया है यूएस की तरफ से? $200 million. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुस्तफा केमाल अतातुर्क 2021 is a joint military drill between which two countries? मुस्तफा केमाल अतातुर्क 2021 ये किस दो देश के बीच में जॉइंट मिलिट्री ड्रिल है? सो हेयर आर द ऑप्शन: स्पेन एंड टर्की, अफगानिस्तान एंड अजरबैजान, टर्की एंड अजरबैजान, स्पेन एंड अफगानिस्तान. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज Turkish and Azerbaijan militaries have started joint drills called Mustafa Kemal Atatürk 2021. In Baku, Azerbaijan's defense ministry said. तुर्किश और अज़रबैजान के मिलकर के ये जॉइंट मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट कर रहे हैं मुस्तफा केमाल अतातुर्क 2021 बाकू में. ओके, अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी दी है. So now next question, which organization has collaborated with Massive Earth Foundation to launch low carbon earth for the Asia Pacific? किस ऑर्गेनाइजेशन ने मासिव अर्थ फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया है लो कार्बन अर्थ एशिया पैसिफिक के लिए? सो हेयर आर द ऑप्शंस: WHO, UNDP, UNEP, यूनिसेफ.
So here the correct answer is option C, UNEP. In a bid to boost the startup ecosystem and promoting the transition to a low carbon lifestyle in the Asia Pacific, United Nations Environment Program in collaboration with Massive Earth Foundation has announced the launch of Low Carbon Earth. ओके, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए और लो कार्बन लाइफस्टाइल एशिया पैसिफिक में इसके ट्रांजिशन को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने एमईएफ मासिव अर्थ फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट किया है और वो अनाउंस करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं लो कार्बन अर्थ. Okay, so now next question. Which Indian naval ship has been deployed to participate in joint exercise with friendly navies? Friendly navies के साथ joint exercise में participate करने के लिए किस भारतीय naval ship को deploy कर दिया गया है? So here are the options. INS तलवार, INS तबार, INS त्रिशूल, INS तरकाश. So here the correct answer is option B, INS तबार. Towards enhancing military cooperation with friendly nations, Indian naval ships Tabar commenced her prolonged deployment on 13 June and will visit a number of ports in Africa and Europe till end September. Okay. मिलिट्री कॉपरेशन फ्रेंडली नेशन के साथ बढ़ते हुए भारतीय नेवल शिप तबार को डिप्लॉय कर दिया गया 13 जून को और अब वो सितंबर के एंड तक अफ्रीका और यूरोप के बहुत सारे पोर्ट्स में विजिट करेगी. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इट्स फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा? किस बैंक ने अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है एमएसएमई प्रेरणा? सो हियर आर द ऑप्शंस. इंडियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड बैंक ऑफ बड़ौदा. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडियन बैंक. Indian Bank launches its flagships business mentoring program MSME Prerana in the state of Maharashtra. It was launched by Shri Nitin Gadkari, Union Minister of MSME and Road Transport and Highway. इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा महाराष्ट्र स्टेट में, जो कि श्री नितिन गडकरी की तरफ से लॉन्च किया गया है और यूनियन मिनिस्टर एमएसएमई ने रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे को इसकी जानकारी दी है. So now next question. Dwara E-Dairy Solution Private Limited has partnered with which insurance company for digital cattle identity solution? द्वारा E-Dairy Solution Private Limited ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है डिजिटल कैटल आइडेंटिटी सॉल्यूशन के लिए? सो हियर आर द ऑप्शंस. इफ्को, टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी, भारती एएक्सए जनरल इंश्योरेंस, आदित्य बिरला जनरल इंश्योरेंस. So here the correct answer is option A, IFFCO Tokyo General Insurance. Dwara E-Dairy Solution Private Limited announced its partnership with IFFCO Tokyo General Insurance for providing artificial intelligence powered digital cattle identity solution for cattle insurance. द्वारा E-Dairy Solution Private Limited ने पार्टनरशिप की है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के साथ ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिजिटल कैटल आइडेंटिटी सॉल्यूशन मिल सके कैटल इंश्योरेंस के लिए. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर विल बैडमिंटन सुधीरमान कप फाइनल्स 2021 बी हेल्ड? बैडमिंटन सुधीरमान कप फाइनल्स 2021 कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा? सो हियर आर द ऑप्शंस. बाली इंडोनेशिया, वंता फिनलैंड, हेलसिंकी फिनलैंड, वालेट्टा माल्टा. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. In badminton, two key tournaments, the Sudirman Cup Finals 2021 and the BWF World Tour Finals, which were originally planned to take place in China this year, have now been moved to Vantaa, Finland and Bali, Indonesia, respectively. बैडमिंटन की दो की टूर्नामेंट सुधीरमन कप फाइनल्स 2021 और BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स, ये दोनों पहले चाइना में होने वाली थी इस साल, बट बाद में इसकी प्लान चेंज हो गई और अब ये वंता, फिनलैंड, बाली और इंडोनेशिया में खेली जाएगी. So today's last question. Who is the first woman cricketer to get 4-year ban by NADA? कौन वो फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर है जो कि 4 साल के लिए बैन कर दी गई थी NADA की तरफ से? सो हियर आर द ऑप्शंस. शेफाली वर्मा, पूनम रॉथ, अंशुला राव, प्रिया पूनिया. So here the correct answer is Anshula Rao. Anshula Rao has been handed a 4-year ban by the National Anti-Doping Agency for failing a dope test backdated to July 2020. Rao thus became the first woman cricketer to have been punished for doping. मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर अंशुला राव ने हैंड किया है 4-year बैन बाय नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी
एक डॉप टेस्ट में फेल होने के लिए, और जुलाई 2020 तक वो बैकडेटेड रहेंगे। तो इसलिए राव बनी है फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर जिन्हें डोपिंग के लिए पनिश किया गया है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.